السلام علیکم۔ پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ اور پروگرام تکرار کی ٹیم اس وقت پہنچی ہے راجن پور میں۔ یہ ہے جی راجن پور اور سیلاب نے اس کے 80% حصے کو متاثر کیا ہے۔ اگر آپ میرے عقب میں دیکھ سکیں تو یہاں پر کپاس کی بہت زیادہ فصلیں موجود ہیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ جو کپاس کا ریٹ پہلے 6,000 تھا، اس تباہی کے بعد اب وہ ریٹ ڈبل ہو کے 12 سے 15,000 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ہر جگہ جو کہ پانی نظر آ رہا ہے، یہاں پر کھیت تھے، یہاں پر لوگوں کے گھر موجود تھے، یہاں پر لوگوں کے مال مویشی موجود تھے۔ یہ گھر اس وقت تباہ ہو چکے ہیں اس سے جی، اور جو یہاں پر روڈ تھیں وہ بالکل اس وقت پانی میں بہہ چکی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بالکل سیدھی روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ کا جو رابطہ ہے وہ یہاں سے منقطع ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے اس روڈ کو کراس کرنا ہے تو اس کو یہاں یا تو کشتی پہ جانا پڑے گا یا پھر اسے اگر تیراکی آتی ہوگی تو اس طرح سے وہ آگے جا سکتا ہے۔ تباہی بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، جتنا خدشہ تھا شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس تمام تر پورے علاقے پہ بات کرنے کے لیے یہاں سے ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ یاسر اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یاسر، آپ ذرا بتائیے گا کہ اس پورے علاقے میں کتنا نقصان ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ جی عمران، نقصان کی بات کی جائے تو بڑے پیمانے پہ جو تباہی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہر طرف جو سے لوگوں کے گھر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ جو روز کوئی کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہے، تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو سے لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں، سرکاری ریلیف کیمپوں میں موجود ہیں، اور بڑے پیمانے پہ یہاں پہ جو کاٹن کی فصل تھی وہ یہاں پہ متاثر ہوئی ہے۔ 7 لاکھ ایکڑ ٹوٹل یہاں پہ رقبہ متاثر ہوا تھا، جس میں فصلیں 3 لاکھ جو سے اس میں متاثر ہوئی ہیں۔ بڑے پیمانے پہ جو لوگ ابھی بھی ریلیف کی امداد کے منتظر ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے بھی ہمیں کشتیاں جو سی ہیں وہ فراہم کی۔ ابھی بھی ان کے جو سے بال بچے مال مویشی اپنے گھروں میں موجود ہے۔ جانوروں کے لیے چارے کا جو مین پرابلم ہے، ان کو گھاس نہیں مل رہا، یہاں پہ ان کے جانوروں کا پرابلم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لیے دودھ کا مسئلہ ہے، ان کو پینے کے دودھ نہیں مل رہا۔ جو حکومتی دعوے تو بہت ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم امداد کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں کہیں پہ آ رہی، اور ہر طرف جو سی یہ تباہی ہے۔ لوگوں کے جو سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اسکول جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اسکول بھی نہیں جا پا رہے۔ اچھا یہ بتائیں، امداد کچھ پہنچی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں باہر روڈ پہ تو کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بستی تو پوری ڈوبی ہوئی ہے، اس میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یہ بستی جو سی فاضل پور کی قریبی بستی ہے، اسی طرح جو ضلع کے متعدد جو سی بستیاں ہیں، 80% جو ضلع ہے زیر آب آ چکا ہے۔ فاضل پور سٹی شہر ہے، رجحان تحصیل ہے، وہ مکمل جو بڑے شہر ہیں یہ ڈوب چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سونوا ہے، فتح پور ہے، حاجی پور ہے، یہ علاقے بھی مکمل ڈوب چکے ہیں۔ کئی علاقوں کے زمینی راستے جو سے ابھی تک بحال نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عارضی جو سی انڈس ہائی وے کا جو سا کٹاؤ ہوا تھا وہ عارضی طور پہ بحال کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اسٹیل برج جو سا قائم کیا گیا ہے، بھی آمد و رفت بحال کی، لیکن بڑی ٹریفک ابھی بھی بند ہے۔ بڑی ٹریفک ابھی بھی بند ہے اور روڈز جو ہیں وہ اس وقت بالکل آپ دیکھ رہے ہیں جیسے تباہ ہوئے ہیں، اور لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ لگ یہ رہا تھا کہ اتنے دن گزرنے کے بعد کچھ تو سکھ کا سانس لیں گے لوگ، لیکن لوگ اس وقت کافی کسم و پرسی کی حالت میں یہاں پر جی رہے ہیں۔ کچھ یہاں کے مکین اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں ہم۔ بزرگوں، آپ یہ بتائیے گا کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا، اور آپ کا گھر کون سا ہے؟ بس یہ سامنے والا یہ گھر میرا ہے، محمد اجمل کھوکھاروں میں میرا سامنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہمسائے لوگ تھے انہوں کی کپاہ تباہ ہو گئی، بہت نقصان ہو گیا۔ ابھی تک ادھر تک کوئی کشتی والا نہیں ہے، کوئی امداد نہیں ہے، کچھ نہیں ملا۔ ہم لوگ بس ویسے روڈ پہ بچے بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے اگر آپ نے اپنے گھر جانا ہوگا تو وہ تو پھر آپ پیدل نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں تو سارا پانی ابھی تو پانی کھڑا ہوا، ابھی تو نہیں جا سکتے۔ اگر مجبوری ہے تو اللہ کے آسرے پہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے پھر چلے جاتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں بھائی۔ اچھا، میں یہاں پہ کچھ ویسے بچے بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ بیٹا، آپ میں سے کوئی اسکول جاتا ہے بچہ؟ آپ جاتے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد محسن۔ محسن، اور محسن آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تیسری، اور کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول آسمان آباد۔ اچھا، تو اسکول جا رہے ہو آج کل؟ نہیں، تو کیوں نہیں جا رہے بیٹے؟ اسکول بند۔ تو چھٹیاں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، چھٹیوں کا دل نہیں کرتا؟ اسکول جانے کا دل کرتا ہے آپ کا؟ یا کتنا دل کرتا ہے؟ بہت سارا۔ رو کیوں رہے ہو آپ؟ کیا ہوا؟ کھانا کھایا آپ نے؟ یا کیا کھایا ہے؟ چاول۔ چاول کھائے ہیں؟ یا کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ 7۔ اچھا، یہ جی بڑا پیارا بیٹا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، تیسری کلاس میں پڑھتا ہے۔ اسکول ابھی آج کل نہیں جا رہا کیونکہ اسکول بند ہیں، اسکول بھی تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کچھ مزید لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ ادھر آئیے گا۔ کیا نام ہے آپ کا اور کیا نام ہے؟ محمد زہد خان۔
अच्छा जाहिद साहब, ये क्या हो गया यहाँ पे? बस सही तबाही भी तबाही, घर भी सारे रोल गए सी, मकसद है मार भी कटते आए थे, लेकिन पानी भी पानी है। देखो तो सही तो सारे घर भी लौट गए, यानी कि जिंदगियां बचा दे सर निकल आई सा। इतना कोई इमदाद नहीं, लाह चाले को आता वो नहीं आते, किश्ती वाले नहीं आते, मकसद है साडा तो इतना अल्लाह के सिवा दबया कोई का नहीं बस। तो आप ये मुझे बताएं, कोई इमदाद वगैरह आई है आपको? बस ये थोड़ी बहुत ही आती है, बस राशन आता है अभी, वो भी खसेंदू से मकसद पक्का पकाता है, चावल आते हैं, बस दाल आती है, और कुछ नहीं भी आता। तो वो लोग जो कि वोट मांगने के लिए आपके पास यहाँ पर आते थे, MNAs MPs, वो आजकल नजर नहीं आ रहे, वो आते हैं आपके पास? नहीं आते सर जी, इलेक्शन के बाद आएंगे, जब इलेक्शन आएंगे तो वो आएंगे, पहले कोई नहीं आया हमारे पास। तो अभी कितना नुकसान हो गया आपके यहाँ पर? बहुत नुकसान है सर जी, सामने तो अरे नुकसान, सारे घर लोड़ गए, मकसद है असा रोड ते आ गए सर जी। अगर फसल सारे होवे ना तो असा मकसद ना हुआ रोड ते, घर होवे ना तो इतना ना हुआ, फ्लड है सारा रेला दी थी, तबाही मचाई गया देड़ू के सर जी, सही है। रह गया सर जी। तबाही जी, हर तरफ तबाही है। जिस शख्स से भी बात करें उसके घर में जो है वो तबाही फैली हुई है उसके। अब ये लोग इनके घर हैं, ये इतने इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब इनको यहाँ से निकलना पड़ा है क्योंकि घर इस वक्त रहने के काबिल नहीं है। इनकी फैमिलीज इस वक्त बाहर रोड पर हैं और गर्मी काफ़ी शदीद है, यहाँ पर वबाई अमराज भी फैले हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये पानी इतना जहरीला पानी है, ये कोहे सुलेमान से आ रहा है और अगर इसके साथ कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या भाई? अहमद। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ जी। किस चीज़ का काम करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। तो अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? आप अब गुजारा करेंगे, मजदूरी करेंगे। कैसे करेंगे और कुछ नजर आ रहा है आपको आगे कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं? कुछ हालात बेहतर नहीं है सर जी, कोई खान भी नहीं आ रहा, सारा इलाका सारा खत्म हो गया, कोटला खान मोहम्मद बस्ती पठान खान सारा इलाका खत्म हो गया सर जी। तो अब आप खाने पीने के लिए आपको कहाँ से कुछ मिल रहा है? कोई पैसे हैं आपके पास? कुछ है? कुछ भी नहीं है सर जी, बस रोड पे आती है, एक अधिकारी आती है, वो भी छीन के खाना पड़ता है। देखा आपने जी, किसी के पास कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ था वो अब लुट चुका है और सूरत हाल जो है वो बहुत नाकाबिले बयान है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरे दाएं जानिब जितना ताहद्दे नज़र इस वक्त पानी में सब कुछ डूबा हुआ है और मेरे लेफ्ट बाएं जानिब भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, मेरे आगे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है और मेरे बैक साइड पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। तो आप चारों तरफ अगर हम आपको घुमा के दिखाएं और बताएं कि जी यहाँ पर तबाही किस हद तक फैली हुई है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए मुश्किलात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो लोग जो हैं वो पानी से गुजर के उनको जाना पड़ गया। बल्कि एक शख्स यहाँ पर आ भी रहे हैं और इसी तरह से रोज़ जितनी मरतबा भी इनको जाना पड़ता है तो इसी तरह से जा रहे हैं। जी भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अपनी बस्ती से आ रहा हूँ। बस्ती से आ रहे हैं? हाँ जी। हाथ दें, आ जाएं। ये जनाब अपनी बस्ती से आ रहे हैं और जब ये बस्ती से आते हैं तो इसी तरह से गीले होते हैं। ये बिल्कुल एक गंदा पानी है जहाँ पर ये लोग जो हैं वो इससे गुजर के जाना पड़ता है। बुजुर्ग हो, बच्चे हों, बड़े हों, खवातीन हों, उनको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि काफ़ी तकलीफ दे है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। अच्छा, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप? तो इधर क्या आपका घर है? हाँ जी, घर है हमारा इधर बस्ती में। तो क्या हुआ उस घर को? अब घर तो तबाह हो गया, सारा बर्बाद ही हो गया पानी की वजह से। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? कितने बहन भाई हैं आप लोग? कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? बस गुजर बसर हो ही रहा है, अल्लाह पाक दे रहा है, हम खा रहे हैं। 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 6 बंदे हैं और 2 माँ बाप हैं। हाँ जी। तो आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो एक तो कहाँ पे कर रहे हैं और दूसरा अब इस सूरत हाल में आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं यहाँ से? कोशिश करेंगे, मैं मुल्तान में पढ़ रहा हूँ। फसलें तो सारी तबाह हो गई हैं, अल्लाह देगा तो जाएंगे, अगर फुर्सत होगी तो नहीं जाएंगे, नहीं होगी फुर्सत तो नहीं जाएंगे। तो आप कोई इमदाद वगैरह पहुंची आपको? इस वक्त कितनी मुश्किल में आप लोग रह रहे हैं और आपको कोई उम्मीद है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई बंदा भी नहीं आया। प्राइवेट बंदे यहाँ पे इमदाद थोड़ी बहुत कर रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक चुप है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। खाना खा रहे हैं आप? हाँ जी, खाना मिल रहा है थोड़ा बहुत, यानी गुजारा हो रहा है बस। देखिए जी, ये लोग अभी भी सब्र शुक्र के साथ काम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि खाना तो मिल रहा है थोड़ा बहुत और उस थोड़े बहुत में ये गुजारा भी कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट हैं ये और इनका भी घर यहाँ पे मुतासर हुआ है, जिस वजह से ये लोग बाहर जाके पढ़ने के लिए जाते थे। कमाई का एक ज़रिया ये फसलें थीं, अब ये ना ये फसलें रही हैं, ना ये घर रहे हैं, ना ये रोड्स रही हैं और ना वो हालात रहे हैं।
दूसरे इलाकों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं और वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, वहाँ पर लोग किन मसाइल का शिकार हैं और वहाँ कितनी बड़ी तबाही हुई है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। कुछ रोल क्यों निके निके बच्चे हम इस वक्त राजनपुर रोड पर मौजूद हैं। ये फाजिलपुर का इलाका है और इस मेन रोड के दोनों जानिब खैमा बस्ती बनाई गई है। ये वही लोग यहाँ पर मुकीम हैं जो कि इस रोड के दाएं और बाएं जानिब जो है वो रिहाइश पजीर थे, इनके घर थे, इनके माल मवेशी थे, इनकी फसलें यहाँ पर थीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ तबाह हो चुका है। अब ये लोग बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको कुछ खैमे प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पर ये अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो रह रहे हैं। हम आपको कुछ लोगों से मुलाकात भी आपकी करवाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट्स हैं। जिसके जहाँ जो लगा अपने घर का सामान वो यहाँ पर ले आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेटी लाई गई है और घरों में रखी जाती है, चूँकि ज़्यादातर सामान इसमें आ जाता है। छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, चारपाइयाँ भी ये लोग अपने साथ ले आए हुए हैं और इसके साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ जो कि उनके सामने मौजूद थी वो तो आ गई, लेकिन काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ पर मुकीम हैं। इनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी, आप ये बताइए, आप कब से यहाँ पर हैं? 15 दिन वाला ठीक है, सब कुछ था, रोड पे आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप अपने घरों में क्यों नहीं जाते? घर में सिलाब है, सिलाब है, नांग हैं, बठुए हैं, सांप हैं, मच्छर हैं, इतना बड़ा सिलाब आया है। ऐसा बच्चे बचा कर रोड पे आ गए हैं। कोई इंतजामिया नहीं आया, कोई जिले का अफसर नहीं आया, कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया। खाने पीने के लिए मरते हैं, कोई शायद सा नहीं मिल रही, ना खाना मिलता है, ना बच्चों को कपड़े हैं, ना सारे कपड़े हैं, ना सारे डंगरे की कशा है। असा रोल गए हैं सारे वास्ते, कोई हुकूमत का नहीं, कोई सियासी बंदा का नहीं। असा अपने अकेला खुले आसमान तले बैठे हैं सारे। तो ये बताएं, आप खाना पीना किस तरह से चलता है आपका? कौन लोग हैं जो कि आपको खाना देते हैं? कोई शहर डेरी गाजी खाते, कोई लाहौर से, कोई चावल पकाते आते हैं। ब्याह कुछ नहीं मिलता, कोई खाना ब्याह नहीं मिलता, चावल के बगैर ब्याह कुछ नहीं मिलता। थोड़ा बड़ा कोई राशन दे देना है, अल्लाह तरसी करके बाहर के लोग, शहर के लोग, जो लोग बच्चे हुए हैं वो पहुँचाते हैं। तो अब इतने दिन हो गए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कब तक अपने घर पहुँचेंगे अब आप? असा ब्याह सिलाब ना आवे, बारिश ना होवे तो तकरीब हफ्ते खंड बाद असा घर पहुँच वैसे ना। उता खैमे है, उता शांप है, खैमे का नहीं है, बिजली को नहीं है, कोई शमसी है। असा उता कैसे गुजार सकते हैं? अच्छा ये बताएं कि आपको ये खैमे दिए किसने हैं और आपको क्या 3 टाइम का खाना मिलता है यहाँ पर? नहीं, एक टाइम का चावल मिलता है, कई टाइम अल्लाह तरसी करके लोग देते हैं। चावल क्यों मिलता है? बाकी खाने मतलब रोटी क्यों नहीं मिलती, सालन क्यों नहीं मिलता? साकू देता ही कोई नहीं, ना कोई इंतजामिया है, ना कोई डीसी वगैरह, ना कोई जिले अफसर, कोई साकू खाना नहीं पहुँचाता। तो एक कैंप में आप कितने लोग हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं अब? बस्ती हलेली का 200 आदमी है था। हम वाले तो 5 रात से तो आए खड़े हुए थे, कैंप लगे हुए हैं। 200 आदमी है, हिक की फैमिली का, हिक के खानदान का। तो अब तो वहाँ पानी खड़ा हुआ है, कुछ घर भी आपके तबाह हो गए हुए हैं, तो अब आप लोग फिर कैसे वहाँ पर जाएंगे और कैसे तामीर होगी दोबारा घर की? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा रोल क्यों निके निके बच्चे, अच्छा तबाह थी को सारी हर शहर रोल गई है। कोई नहीं सकू करने वाला, नहीं दे वाला, सारे बच्चे रो। अच्छा क्या कर सकूँ? कैसी इंतजामिया, कैसी हुकूमत है? ये अपने लाने वास्ते तैयार हैं, जो मिलती है अगले लोग खाते हैं, सबको कुछ नहीं पूछाते। अच्छा रोल क्यों पक्के थे? यहाँ के जो एमपीए वगैरह हैं, जो एमपीए वगैरह हैं, बस वो बैठे हुए हैं, जिधर बैठे हुए हैं, आते भी नहीं टाइम तक। उन्हें आके एक तरफ चक्कर लगाए गाड़ी दे, आऊँगा हर शय दूँगा, को हुकूमत देगा वो दूँगा, आपू दूँगा, ही टाइम तक 15 दिन थी सब कुछ नहीं मिली। खैमे भी कोई बकरी बेचते, कुछ करते, कोई खैमा एक मोल गए हैं लोग क्या करूँ। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि ये बहुत अजीब सूरत हाल है यहाँ पर।
उनको खाने पीने के लिए नहीं कुछ मिल रहा, और अगर कुछ आता भी है तो वो बता रहे हैं सिर्फ चावल हमें मिल रहे हैं, और उससे लोगों के पेट भी ख़राब हो रहे हैं। दीगर मतलब अब कुछ कई जगह पे मिल जाते चावल, कई जगह नहीं भी मिलते। और अभी छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना ये बेचारे बच्चे जो हैं भूख प्यास में यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इतनी धूप है यहाँ पर कि अंदाज़ा नहीं हम लगा सकते कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और खैमे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इन दूसरे खैमों में क्या सूरत हाल है। लोग किस सोच में इस वक्त मुब्तला हैं। और मेरे दाएं जानिब अभी अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर भी कुछ खैमे लगाए गए हैं। मेरे राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी खैमे लगाए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कुछ बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, और हम देख रहे हैं कि कुछ जानवर तो ये लोग अपने साथ ले आए हैं, लेकिन इनका जो ज़्यादातर माल मवेशी थे वो तो वहीं पर छोड़ आए हैं। कुछ लोगों ने वो अपने जानवर बेच के यहाँ पर खैमे ख़रीद लिए हैं, और कुछ लोग ये भी शिकवा कर रहे हैं कि खैमे जो है ना वो हमें जो है खैमे जो हैं वो शायद नहीं दिए गए, और हम खुद ख़रीद कर इन खैमों में मुकीम हैं। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, आपकी उनसे भी मुलाकात कराते हैं, उनके भी मसाइल जान लेते हैं। आइए चलते हैं। कुछ रोल क्यों निके निके बच्चे बुजुर्गों, ये बताएं कि आप लोग कब से यहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? सर सारी देख कपा गल गई है, 5-6 कमरे ढह गए, 4 दीवारें ढह गए, सारी कच्चा नहीं रहेगी। ही टाइम तक सिर बचा दिया बेटो, जानी नुकसान नहीं तेरा, बाकी कच्चा नहीं रहेगी। अच्छा बाबा जी तुसी इधर आओ, कुछ खान पीन मिल रहा है? की खादा तुसी सवेरे? बस ये बिस्कुट थे, ये केक शेक थे, ये अंदर पेन भी कुछ नहीं, राशन इतनी चावल दे देंगे बस। बिस्किट से चावल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? जी। अच्छा माँ जी तुसी दसो, तुसी ਇੱਥੇ खुश हो? कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, कुछ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, कुछ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਚਾਵਲ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲਦੇ ਪਨ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲਦੇ ਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਸੱਜਾਂ ਲੋੜ ਤੇ ਆ ਬੈਠੂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਢੇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੋੜ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੂ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਤੇ ਬੈਠੂ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਬੈਠੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? असा कुछ चाह मकान मिल वञे, बस ॿियो कुछ न मिले, सिर्फ चाह मकान मिल वञे। जवान धीरे इंसान बैठी चा पक्की ते। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी इतना करे गल नौ मेरे डेढ़ दिन ई मेरे डेढ़ दिन बाल ढेर सारे हम झूपड़ियां की लई ते बैठू छे बाहर दी जा कानी जही ढागन बेशक देख गिनो जही सजा खत्म मौके ते जही देखो सनी मैदान बने पे जवान सदा धीरे न बेइज्जती की ते बैठू सड़क ते हम दी पी हम मेहंदी पई बैठू क्या करूं कुछ नहीं रह गया सदा सावन करो जही दी तावन करो सदा। वो बता रहे हैं जी कुछ नहीं रह गया उनके पास और ताउन की दरखास्त भी उन्होंने की है। माँ जी की हाल है ताड़ा? सारा हाल यो जो सारा मड्डी सामान लोड आयु कशा कानी सिर्फ ये सड़क रो ते बैठो ते साकुन सिर्फ वो चावल ते बिस्कुट आंदन भी कुशा कानी मिलदी पी ऐसा चुप करते बैठो धीरे जवान सड़क ते बिलाई बैठो क्या क्या कर सकते हो सा गरीब है सारा पानी जहियान मकान और ढाएगन हवेलिया ढाएगन कशा कानी ऐसा तोड़ो ते देहात चवानी बहुत सारा वो चट पदार्थ बैठो जीवे कोई तपसी पिया कोई कहीं कुछ बने तू रोक कुछ कर नहीं सकता असारा इहो कुछ सवाल सा कोई जा मकान मिले सा कोई कहीं बाहर दा ठिकाना मिले सा ते कशा कानी मिलदी पई। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਸਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? खीर दे डब्बे दे वेंदन बस कुटे नाल सब खीर दे डब्बे दे वेंदन बस ये जरा वाला चाह पके नु चाह बस। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं और इनकी मदद की जानी चाहिए। हर बस्ती के अंदर हर खैमे के अंदर एक नई कहानी है, एक नई कहानी कुछ देर बाद आप हमारे साथ रहिए।
नाला कुछ असां रोल क्यों निके निके बच्चे हम इस वक्त पहुंचे हैं जी फाजलपुर में और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी मुतासिन से इजहार यकजहती करने के लिए पहुंची हैं और यहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात भी किया है, खिताब भी किया है। यहाँ पर कुछ सामान जो कि इन मुतासिन के लिए वो लाई थी वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रक भी पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लोग तो हैं लेकिन अभी तक उनको सामान की तकसीम का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो सका। और इसमें एक जो शर्त यहाँ से रखी गई है वो ये है कि लोग अपने आईडी कार्ड जो हैं वो पहले दिखाएंगे और उनकी बेसिस पर उनको यहाँ पर सामान दिया जाएगा। कुछ बुजुर्ग खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं, आपको सामान मिला है? सलाम अलैकुम बीबी, मेरी अम्मा पानी दे बुढ़े होए हूँ, गरीब बदे हूँ, फैमिली लूढ़े बदू बुढ़े बदू, इमदाद कर अल्लाह वास्ते, असा इमदाद मकदूर टाइम करो अल्लाह दे नाते। वो ट्रक खड़ा हुआ है, आपको ट्रक मिला है कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए? क्या खान पीने लिए कुछ मिले तानू? मेरे को कशा का नहीं मिली, अज ही वक्त नहीं अब्बा, मेरे को ही वक्त नहीं अम्मा, कशा का नहीं मिली बीबी। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि आप लोग कब से यहाँ पर हैं और यहाँ पर कुछ मिल भी रहा है आपको कि नहीं? नहीं भैया, कशा नहीं मिली गई, मेरे 5 बच्चे नहीं टाइम तक कशा नहीं मिली गई, सारे काट लौट गए, सारे मड्डिया सामान लौट गए, सारे जही भी कहने ना सा टप की बैठा से, ये मेरी सास है, ये शदी रंडर साले ही लोड पानी ना जान खादे मार गए। अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ पर काफी बदनज़मी भी हमें देखने को मिली है, तो आप लोग जो हैं जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे वो पूरा हुआ है आपका? कहना कशा कहनी पूरा था साको आके ना तो साडे सेवे तक घर देसी मकान देसी, मैं बेवाजाला मेरा जवान ही ने अनजांट रह गए सारी जिंदगी, करेंदे करेंदे फौत के डेथ सर्टिफिकेट चाती वधिया, ना घर है ना मकान है, 5 बालन किदे वना, सिर्फ कम से कम गाल तो सुने तकरीर की गई है भाई आटा चाहिए, साको आटा भी नहीं मिला, सारे बाल जी भुखे बैठे बैठे रहें। कितना नुकसान हुआ है आपका? सारे यका घर मकान ऐसा रोड पे आ गए, मेरे 5 बालन, मेरा कोई कह नहीं, मेरा जवान आ कमावना लफौती गए। तो रह कहाँ पर हैं आप लोग और खाने पीने के लिए क्या इंतजाम है? खावन पीवन तो साई में लोग साको हम साइड इन खा बांधो सा लोग ने घरों को सड़क के आदि कहन से असा सड़क के वाले जरे बैठन फकीरन फकुआतन घिंदे बैठन बिचेंदे खड़न, सारे घर छक पा दाल दा कह नहीं आया। ठीक है, यहाँ बड़ी अजीब सूरत हाल है, जिससे पूछो वो यही कह रहा है कि मुझे इमदाद नहीं मिल रही है। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब ये आप यहाँ पर आए हैं, किसने आपको बुलाया है और किस मकसद के लिए बुलाया है? क्या कुछ मिला है आपको? नहीं मिला, 10 दिन रिश्तेदारों के घर रहे हैं, घर में पानी था, घर में पानी गिर गया था, 10 दिन उधर रह गए। जब किसी भी नाम लिखते हैं देते कुछ भी नहीं है, वे कहते हैं कल ले आ जाओ, परसों आ जाओ, ऐसे दिन कुछ भी नहीं मिला। तो आप तो कहाँ से आए हैं और आपको तो चलने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी? नजदीक में राणा फायज महल्ला। आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरे घर में पानी गिरने वाले सब फौत हो गए हैं, 4 छोटे भाई हैं, बड़ा मैं हूँ। अच्छा अब आप ये मुझे बताइए, आप भाई साहब ये बताइए मुझे कि आप कहाँ से हैं और आपका कितना नुकसान हुआ है? अब यहाँ पर कोई इमदाद पहुँची आपको? नहीं, हम मोहम्मद से आए, जितना पानी फाजिलपुर के गुजर गया है उधर भी गुजरा वो पानी। जो लोग के पास जाते हैं वो कहते हैं भाई बस कल या परसों पैसे लेके हमारे पास है तो 3000 2000 टेंट मिलता है, हमको मिलता भी कुछ नहीं। मौजा मोहम्मद में कोई अब तक आया भी नहीं है। तो ये तो अभी मरियम नवाज आपके सामने यहाँ पर आई हैं, तो उन्होंने क्या दिया आपको? फिर आके नहीं मिला सर हमको, कुछ किसी इधर धिक्का लगा था, कोई इधर लगा था, हमको मिलता भी कुछ नहीं है। अच्छा आप बुजुर्गों आप इधर आगे आइए। अब हर बंदा गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सामान दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस यहाँ पर आ रहे हैं, सियासतदान आ रहे हैं, सामान के ट्रक लेकर आ रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहा? सामान किसी को भी नहीं मिल रहा। जिम्मेदार भाई हैं जो वो अपने पास सामान आधा सामान आप रख लेते हैं, गरीबों में कुछ तकसीम करते हैं, कुछ नहीं तकसीम करते हैं। हमारे गांव में बहुत सारा नुकसान हो चुका है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और अपने जनरल साहब से अपील करता हूं कि खास तौर पर फाजिलपुर में तवज्जो दें।
ताकि इस मुसीबत की घड़ी में मुसलमानों को राशन, मकान और मवेशी जो मर चुके हैं उनका भी सामान दिया जाए। और फाजिलपुर अवाम बहुत मुतासर हो चुकी है। शुमाल, जनूब, मशरक, मगरब में मखलूकात बहुत परेशान है। गर्मी का आलम है, खाने का कुछ भी नहीं है। मखलूक रो रही है, तड़प रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। खाना खाया आपने? जी, अपन खाना हमने नहीं खाया। जब किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, वो रो रहे हैं, छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपने ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, दिखाइए। आईडी कार्ड। अब्दुल खालिक साहब, अब्दुल खालिक साहब ये बताइए, आपको कुछ खाने पीने के लिए मिला? कार्ड क्यों लेके फिर रहे हैं आप? कुछ नहीं मिला सही। साढ़े बच्चे रोड़े ते बाय बाय के अपना खाकू कैंप ही नहीं देता। अच्छा, हाँ जी बताइए आप। इधर ये 4 का ट्रक का बंद है मस्जिद में, कुछ नहीं दे रहे। रात को लोग चलाते हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। बिल्कुल इधर लगे हुए हैं। चले देखो, राशन लुका हुआ है, मस्जिद में लुका हुआ है, मस्जिद में अंदर ताला है। मस्जिद में सामान रखा हुआ है और वहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा। आप ये बताएं क्यों नहीं दिया जा रहा? यहाँ पे भी सामान खड़ा हुआ है, आप बता रहे मस्जिद में भी है, तो क्यों नहीं मिल रहा आपको? वो सब जो है ना अपने को लिए देते हैं, जो बाहर के आदमी आता है ना उसको बोलता है पैसा दे फिर लेके जाओ। जो टेंट वगैरह है उस 10,000, 9,000, 5,000 सब बेचते हैं ऐसे। आप ये बता रहे हैं कि जो सामान आ रहा है वो यहाँ पर बिक रहा है? बिक रहा है। हमारा लुंडी सैदान में ऐसे बिक रहा है। हम लुंडी सैदान से, कहाँ से? लुंडी सैदान से, कहा सुल्तान से आ रहा है। इधर गर्मी में धूप में बड़े रहो, इधर उधर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो लिख रहे हैं। आप ये मुझे बताएं, अगर सामान मिल नहीं रहा फिर जा कहाँ रहा है फिर? भाईजान जो जिसके पास सामान आ रहा है ना वो अपना आप पेट भर रहा है, जिसको ताल्लुक है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप लोग कैसे खा पी रहे हैं? सब भूखे हैं, कुछ नहीं है, भूखे कुछ नहीं है। बहुत जी, यहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। और ये हम तो यहाँ से देख रहे थे कि ट्रक भी खड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि मस्जिद या साथ ही मस्जिद है, वहाँ पर भी ट्रक खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना, अभी तक उनको दिया नहीं जा रहा। यहाँ पर मरियम नवाज भी आई हैं, लेकिन इन लोगों का अभी तक जो है वो मदावा नहीं हो पाया। और ये लोग ये कह रहे हैं कि फाजिलपुर इतना ज्यादा मुतासर हुआ है, यहाँ पर आएं और यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी पैसे दिए जाएं, लेकिन इनको नहीं मिल रहे। गुजारिश इनकी यही है कि फाजिलपुर से जो लोग मुतासर हुए हैं उनको इमदाद पहुँचाई जाए और इनकी मुश्किलात में कुछ कमी की जाए। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जनाब, इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल राजनपुर नंबर 1 में मौजूद हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुतासरीन और उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाहर तो हमने देखा ना कि इन लोगों के लिए खैमे बनाए गए थे, धूप की शिद्दत भी है, बारिश भी हो सकती है, दीगर भी खतरात वहाँ पर लाक हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर स्कूल की इमारत के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर इनको ठहराया गया है। ये क्लासरूम है और अब अंदर जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर कमोबेश 1 या 2 या 3 फैमिलीज जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं, वो यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं। इनको हर किस्म की सहूलत है, बड़े साफ सुथरे कमरे हैं और पंखे की सहूलत भी इनको मौजूद है। बाहर पानी भी इनको मिल रहा है, खाने के लिए देगें भी यहाँ पर बनाई गई हैं, तो खुराक का भी बेहतर इंतजाम है। कुछ लोग हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। भाईजान, आप कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ पर? हम रुझान से हैं सर, हफ्ता हो गया एकदम। तो यहाँ पर कैसी सहूलत आपको मिल रही है? क्या क्या कुछ खाने पीने को मिल रहा है? क्या सहूलत है? सहूलत तो सही है, ऐसी साहब की मेहरबानी है और पटवारी साहब के भी। खाना पीना तो अच्छा है, बिल्कुल लाइटिंग वगैरह भी सही है, पंखे वगैरह भी 24 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, ये लोग अभी सोच रहे हैं कि कोई अफसर का हुक्म आया हुआ है या खुद कर रहे हैं, वो टेंट वगैरह लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उधर इन लोगों को उधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन उधर हम नहीं जाएंगे, उधर गर्मी है बहुत, बच्चे बीमार हो जाएंगे हमारे। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं आला हुकाम से कि मेहरबानी करें, हमको इधर रहने दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जी बाहर कुछ कैंप्स भी लगाए गए हैं और इनको शायद ये खदशा है कि इन लोगों को अब कैंप्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि बाहर इस वक्त यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी भी है, हब्स का मौसम भी है और वबाई अमराज भी आपको पता है, पानी यहाँ पर काफ़ी खड़ा हुआ है तो वो भी फूट रहे हुए हैं। तो एक और भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। तो भाई साहब, आप क्या करते हैं और कब से यहाँ पे? हम सर तकरीबन हफ्ता हो गया यहाँ पे।
اور ضلع انتظامیہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کھانا وغیرہ اچھا مل رہا ہے. تو ہمارا یہ گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز الہی اور جناب شہباز شریف سے وزیر اعظم سے کہ تاکہ ہم گھر جائیں, جو ہمارے گھر جو ٹوٹ گئے ہیں, جب غریبوں فصلیں وغیرہ تباہ ہو گئی ہیں, تاکہ ان کو جو اپنے گھروں کے سروے کیا جائے تاکہ وہ غریب اپنے گھر بیٹھ سکیں. اور میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ہمارا اپیل مدد کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا بھائی جان, آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کب سے یہاں پہ, کیسا ماحول ہے یہاں کا؟ ہفتہ ہو گیا سر, ہفتہ پورا. تو یہاں پہ کیسا ماحول ہے, کیسی سہولت ہے آپ کو؟ صحیح ہے, ماحول صحیح ہے, کھانا پینا اچھا ملتا ہے. ہم غریب آدمی ہیں, ادھر کشتی پر آئے ہیں روڈ پر, پھر ادھر آ گئے. تو آپ کس علاقے سے آئے ہیں اور کیا وہاں پر آپ جس علاقے سے آئے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے سیلاب کی؟ سیلاب ابھی بھی پانی چل رہا ہے, ادھر رجحان مداری میں ابھی بھی پانی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, شہر میں ابھی بھی وہاں پہ جی پانی چل رہا ہے. اور وہاں پر ٹھیک ہے, یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, سامان چھوڑ کے آئے ہیں, مال مویشی چھوڑ کے آئے ہیں, صرف کپڑوں کے ساتھ اور کچھ ضروری سامان جو کہ ان کے ساتھ ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یہاں پر. ابھی تک تو یہ مطمئن لگتے ہیں کہ کچی سہولت یہاں پر ملی ہوئی ہے. تو اسی جو ارینجمنٹس یہاں پر کیے گئے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر راجن پور ارسلان بشیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اے سی صاحب, سب سے پہلی شکایت تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید باہر کوئی خیمے لگا رہے ہیں آپ لوگ, اور لگ انہیں یہ رہا ہے کہ آپ لوگ اب ان کو یہاں سے باہر ٹرانسفر کریں گے, اور باہر گرمی بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں. تو کیا آپ کی پلاننگ ہے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں ان صاحب کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ اس طرح کہ ہمارے پاس جو سپیس ہے اس میں ہمارے پاس اراؤنڈ 464 لوگ رہ رہے ہیں. ان کو ہم یہاں پہ سہولیات دے رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مزید لوگ بھی ہمارے پاس آئیں تو وہ ان اٹینڈڈ نہ رہیں. تو اس لیے مزید سپیس کریٹ کرنے کے لیے ہم وہ خیمے لگا رہے ہیں. ان لوگوں کو باہر ہرگز شفٹ نہیں کیا جائے گا. اور وہاں پہ بھی جو رکھا جائے گا اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر ہم نے پیڈسٹل فینس کا ارینج کیا ہوا ہے. لیجر ٹائم ایون کہ اگر انہوں نے گزارنا ہو باہر چارپائی کے نوپی کی سہولت موجود ہے. تو یہ خدشات ان کے بالکل بے بنیاد سے ہیں. کچھ ہم ان کو انشاءاللہ پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو لوگ یہاں ہیں وہ یہیں رہیں گے. مزید سپیس کے لیے ہم وہ جگہ اس کو سیٹ کر رہے ہیں. تو ارسلان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جتنے لوگ یہاں پر ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, تو ان کے لیے کون کون سی فیسلٹیز ہیں یہاں پر؟ صبح دوپہر شام ان کو کھانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ ان کی مدد کس طرح سے کی جا رہی ہے یہاں پر؟ کھانا ہم ان کو ڈیلی بیس پہ یہیں پہ ہم تیار کروا رہے ہیں. اور کھانے میں ہر دن ڈفرینٹ مینیو ہوتا ہے. ناشتے کا, لنچ کا, ڈنر کا ڈفرینٹ مینیو ہے, تاکہ اس میں ایک ہی چیز نہ ہو جس سے لوگ تنگ آ جائیں. لائک رائس ہیں تو لوگ اس سے تنگ آ جائیں گے, یا اور کوئی سالن بن رہا ہے تو چکن ہے اس میں حلیم آ جاتا ہے, چاول آ جاتے ہیں, کوئی اور سالن بھی آ جاتا ہے. باقی میڈیسن کی فیسلٹی یہاں پہ ہے. ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے لائف سٹاک کی ہے, جس کے جانور ہیں اس کو بھی میڈیسن ملے گی. اس کے علاوہ مزید ہم نے ایک نجی ادارے کے ساتھ کولیبوریشن سے ایک ہم اپنا منی ہاسپٹل یہاں پہ اس کیمپ میں قائم کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو تھوڑی ایڈوانس سہولیات مل جائیں. 2-3 کیمپس ہمارے ادھر ادھر سائٹس پہ بھی ہیں. ہم ان کو بھی لوگوں کو یہاں ریفر کریں گے کہ جو بھی ان کو میڈیکل فیسلٹیز چاہیے وہ یہاں آ کے اس کو لے سکیں. اس کے علاوہ اور بھی جو کوئی میڈیسن ہو یا کوئی پیشنٹ ایسا ہو اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے دوسرے ہاسپٹل. پانی کی فیسلٹی دے رہے ہیں. مطلب ہم اپنے لوگوں کو میکسیمم پاسبل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان اٹینڈڈ نہ رہیں. اچھا, اب یہ بتائیے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں یہ لوگ یہاں پر ہیں, اور مزید کتنے دن ان کو اب یہاں پر رہنا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو کہ مجھے یہاں پوسٹ ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں. تو جب سے میں آیا ہوں میں نے آتے ہی 2nd ڈے آف مائی پوسٹنگ یہاں اس کیمپ کو اسٹیبلش کروایا. تب سے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں, کچھ لوگ مزید نئے بھی آ جاتے ہیں. تو جب تک پانی تھوڑا سا لیول ڈاؤن ہوتا ہے تبھی ہم ان کو واپس بھیجنا شروع کر دیں گے. ہم دیکھیں گے کہ جس کا گھر ڈیمیج ہے اس کو ہم خیمہ بھی ساتھ دیں گے, اس کو ہم 2-3 ہفتے کا راشن بھی دیں گے تاکہ وہ اپنا جا کے ریہیبلیٹیشن بھی کر سکے, اور ان کو باعزت طریقے سے یہاں سے ود ٹرانسپورٹ ہم ان کو روانہ کریں گے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا, یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ان کو اٹینڈ کریں گے اور پوری ذمہ داری سے کریں گے. تحصیل انتظامیہ ان کا پورا خیال رکھ رہی ہے. جیسا کہ یہ 2 صاحبان نے کہا یہ تحصیل رجحان سے ہیں, لیکن ہمارے وہاں یہ پالیسی ہے کہ جو بھی سیلاب متاثرین جہاں سے بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے معززین ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ انٹرٹین کریں گے, اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہم ان کو سہولیات پرووائڈ کریں گے. اچھا, آخر میں صرف ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے, چونکہ یہ جی سکول ہے اور کافی بڑا سکول ہے, گورنمنٹ کا سکول ہے, یہاں پر تعلیم و تربیت کے سارے انتظامات ہوتے تھے, لیکن اب یہاں پر کلاسز نہیں ہو رہی. تو اب وہ جو پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا کیا پلان ہے اب آپ کا؟
उसमें हम ये करेंगे कि जब भी स्कूल ये खुलेगा उसमें हम शिफ्ट्स बना दें ताकि बच्चों का जो स्टडी का खर्च हुआ है वो कम हो सके। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इनको हम जो है मैनेज करें। उसके अलावा कुछ घर मोस्टली जो लोगों के डूब गए हैं या लोग सैलाब से डिस्टर्ब हुए हुए हैं, उनके लिए वैसे भी इन दिनों में मुमकिन ना होता कि वो अपने बच्चों को तालीम के लिए भिजवाते हैं, क्योंकि शहर बीच में से कट चुका था 2 हिस्सों में। फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़, इवन कि हमारे ऑफिस स्टाफ के लोग भी जो है वो इफेक्टेड हैं। तो इसलिए हमारे पास अभी जो बेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन था वो हमने लिया। फिर इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि जो बच्चों की तालीम का खर्च हुआ है उसमें हम उनकी डबल शिफ्ट्स करें या कुछ इस तरह का इंतजाम करें ताकि मैक्सिमम पॉसिबल जो खर्च हुआ है तालीम का वो कवर हो सके। जाते जाते सिर्फ मुख्तसर इतना बता दीजिए हमें कि कितनी देर में ये पूरा इलाका नॉर्मल हो जाएगा? नॉर्मलसी, फुल नॉर्मलसी के लिए तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन वी आर होपिंग कि इन लोगों को वापसी के लिए मैक्सिमम 1 वीक लगे। पानी बिल्कुल लेवल डाउन हो जाएगा, उसके बाद ये लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों को जाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी अरसलान साहब थे और जो कि बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं और बता रहे थे कि 1 हफ्ता इनको मजीद लग सकता है यहाँ पर हम रखें इनको और इनके लिए भरपूर इंतजामात हैं। 464 लोग जो हैं वो इसी तरह के क्लासरूम्स के अंदर उनको रखा गया है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ख़वातीन के लिए अच्छा इंतज़ाम है। खाने पीने के लिए जो हमने इंतजामात देखे वो एज़ कम्पेयर टू के जो रोड साइड पे जो कैंप्स लगे हुए थे उससे बहुत बेहतर है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अगर ऐसे इंतजामात होंगे तो इनकी मुश्किलात किसी हद तक कम होगी, लेकिन असल मसला यही है कि ये पूरा इलाका नॉर्मल रूटीन में जाए, ये लोग अपने घर में जाएं, अपनी सुकून की ज़िंदगी जिएं और इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि इनकी भी एक इज़्ज़त नफ्स है। हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करेंगे, मुखिर हज़रात से भी यही अपील करेंगे और जिसके इख्तियार में ये चीज़ें हैं जो पावर कॉरिडोर्स में मौजूद हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे हम कि इन लोगों की सुने। ये लोग आपके इंतज़ार में हैं और आपकी इमदाद के मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।